हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे मैग्ना कार्टा का, बल्कि हम आज उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में यू हैव ऑलरेडी नो the background, the reason why we had magna carta, what were the factors which um, uh, compelling us in 21st century to read about a document of 13th century, which has been in 1215 and had a peace treaty was signed in 1217 and all that we already had discussed in my previous video. In this video we are going to discuss only about the facts on magna carta, friends. So without making much delay, let's get started. तो फैक्ट्स ऑन मैग्ना कार्टा पे हम चलते हैं। फैक्ट्स ऑन मैग्ना कार्टा। तो इफ़ यू आर गोइंग टू appear in your examination and you are going to write these point, you are going to rock the answer, friends. तो विदाउट मेकिंग मच डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेंगे। कब साइन हुआ था? 1215 में ये साइन हुआ है डॉक्यूमेंट, 1215। एंड व्हाट वाज द सेंचुरी? 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस नेम्स। मैग्ना कार्टा को सिर्फ हम मैग्ना कार्टा के नाम से नहीं जानते हैं। मैग्ना कार्टा हैज़ वेरियस नेम्स लाइक ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज, ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज, मैग्ना चार्टा, मैग्ना चार्टा, ग्रेट चार्टर और चार्टर ऑफ लिबर्टीज, चार्टर of liberties. If you are having these names anywhere, charter of liberties, great charter, magna charta, great charter of liberties, so you should know that this is nothing but magna carta. A, B, C and D, these four names. If you are going to cite these names in your answer writing, then you will definitely rock your answer. Next we are going, next thing, that is language. Language of magna carta. So language has been written in Latin. It has been written in Latin language, friends. Next thing, if we talk, so we are going to talk about the clauses. What are clauses of magna carta? So likewise we are having in fundamental rights, no, article 12 to article 35 dealing with fundamental rights, and in UDHR you are seeing that we are having 30 articles and like that. इसी तरीके से मैग्ना कार्टा में 63 clauses थे. It had only 63 clauses, and most important to remember about the clauses is that 4 clauses of magna carta, 4 clauses of magna carta still valid, है friends. And what are those clauses? Clause 1, clause 13, clause 39 and clause 40. Then we are having number 5. We had discussed clause, we had discussed your various names and language and everything. Now we are moving ahead, and as you know that magna carta is an agreement, no, agreement है magna carta, एक agreement between King John of England, King John of England and barons. तो इसका क्या नाम है? इसका एक पार्टिकुलर नेम है. वी आर गोइंग टू राइट दैट. यस, पार्टिकुलर नेम है. और ये कब इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ? व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. तो वी आर डीलिंग विद दैट. इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इन 1217 विद द नेम ऑफ मैग्ना कार्टा लाइबर्टेटम. मैग्ना कार्टा लाइबर टेटम. मैग्ना कार्टा लाइबर टेटम 1217. तो हमने देखा कि 1215 में ये जो है वो साइन हुआ, और इम्प्लीमेंट कब हुआ फ्रेंड्स? ये इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन sign in 1215, implemented in 1217. Okay friends, now if we want to see the magna carta, तो magna carta की कहा जाता है commonly कि magna carta
when it was signed, and it has been distributed in the churches, in the city, country, and with the king, and king का जो भी parliament था, तो 12 or 16, I guess 12 or 16 copies were there, and 2 copies still valid, 2 copies still present in British Library, still present in British Library. You can name the library, that is Salisbury Cathedral, Salisbury Cathedral, and next one is Lincoln Cathedral, Lincoln Cathedral. In my previous video I had discussed about your Cyrus cylinder, no, and Cyrus cylinder का जो प्रेजेंस है वो ब्रिटिश म्यूजियम में है, और मैग्ना कार्टा का ये जो कॉपीज़ हैं ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, सैलिसबरी कैथेड्रल में और लिंकन कैथेड्रल में. फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग, आई एम नॉट गुड इन राइटिंग ऑन पेन टैब एंड नॉट सो मच हैबिचुअल, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड नाउ मूविंग अहेड, इसकी बात कर लें अगर हम आगे बढ़ते हुए, तो हमने अभी प्रीवियसली क्लॉजेस की बात की थी, तो आपको अगर डिटेल आंसर लिखना होगा तो यू कैन राइट अबाउट क्लॉज 1 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ चर्चेस की, फ्रीडम ऑफ चर्च. क्लॉज 2 बात करता है कस्टम्स ऑफ लंदन की. क्लॉज 13 आई मीन, और 39 बात करता है नो इम्प्रिजमेंट विदाउट ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस. और 40 बात करता है नो सेलिंग ऑफ जस्टिस, नो सेलिंग ऑफ जस्टिस, इट्स डिनायल एंड डिले. Moving to the next page, we are going to deal, we know the importance of Magna Carta ना. Magna Carta has been very important for mankind, एक लैंडमार्क जजमेंट रहा, डॉक्यूमेंट रहा है ये हमारे लिए. और इसके बाद हमको इसी के इनिशिएशन के बाद हमें वी गेट द पेटिशन ऑफ राइट हेबियस कॉर्पस एक्ट, एंड देन वी गेट अवेयर अबाउट अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ऑल दैट. फ्रेंड्स, इसने इन सबको तो एक रास्ता दे दिया, एक वे दे दिया, एक रास्ता दिया, एक वे दिया कि हाँ हम इस तरीके से सोच के और फिर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन तक पहुँचे हैं फ्रेंड्स. लेकिन फिर भी ये कुछ क्रिटिसिज्म को भी ये झेलता है, वो भी हमें जानना चाहिए. तो वो कौन सा क्रिटिसिज्म है, आइए देखते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है इसका, वो ये है, ड्रॉबैक ये है कि ये जो ग्रेट चार्टर है वो लिमिटेड था, लिमिटेड इन इट्स स्कोप, इसके स्कोप में ये लिमिटेड था, स्कोप में. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 13th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी इस तरीके से थी, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन दिस. टू अंडरस्टैंड यू बेटर, दैट्स वाई आई एम ड्राइंग इट हियर. किंग, क्लर्जी या चर्च कह लीजिए, या इन्फ्लुएंशियल लोग कह लीजिए, जितने रिच लोग थे, इंडस्ट्रियल्स आप कह सकते हैं आज के टाइम में कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे पुअर क्लासेस आप कह सकते हैं, आर्टिजन्स, वर्कर्स, लेबरर्स, ये सब यहाँ पर थे. तो जो हमारा मैग्ना कार्टा था उसने इन 2 क्लास की बात की, इन दोनों ही क्लास तक इसका जो स्कोप था वो लिमिटेड था. इट डजंट टॉक अबाउट द बॉटम क्लास, इसने बॉटम क्लास के लिए कोई भी बात नहीं की. इसीलिए यही एक क्रिटिसिज्म है जिसको जो मैग्ना कार्टा के बारे में साइट किया जाता है.